مملکت اردن ہے۔ دریائے اردن کے مشرقی کنارے پر بسا ہونے کی وجہ سے اس ملک کو اردن کا نام ملا تھا۔ ایک ملک عمان ہے جو کہ سعودی عرب اور دبئی کے ساتھ لگتا ہے، جبکہ ایک شہر امان ہے جو کہ اردن کا دارالحکومت اور سب سے بڑا شہر ہے۔ کئی لوگ اس شہر کا نام سنتے ہی سوچنے لگتے ہیں کہ آخر یہ ملک کی بات ہو رہی ہے یا شہر کی، تو اتنا جان لیجئے کہ ایک کا نام عمان ہے جبکہ ایک کا نام امان ہے۔ دنیا کے کئی ممالک کی طرح اردن بھی قدیم زندگی کے آثار کا پتہ دیتا ہے۔ اردن کے ایک گاؤں سے 4400 قبل مسیح کی زندگی کے اثرات بھی دریافت ہو چکے ہیں۔ قدیم زمانے میں اردن میں ایک تہذیب مشہور تھی جسے تاریخ نے آج بھی النبات کے نام سے یاد رکھا ہے، جبکہ یہاں رہنے والوں کو نباتین کہا جاتا تھا۔ یہ لوگ عرب قبائل سے تعلق رکھنے والے افراد تھے۔ یہ لوگ پتھروں کو کاٹ کاٹ کر خوبصورت گھر تعمیر کیا کرتے تھے۔ انسانی عقل اس وقت دنگ رہ جاتی ہے جب پانی ذخیرہ کرنے اور سربراہی کے انتظامات کے لیے بنی بیٹھک دیکھی جاتی ہے۔ زمانہ قدیم سے اردن کے پہاڑوں میں بنے اس شہر کو آج بھی پیٹر کے نام سے ہی جانا جاتا ہے۔ ماضی میں بھی اس شہر کا یہی نام ہوا کرتا تھا۔ صرف نباتین قبائل ہی نہیں، بے شمار دیگر عرب قبائل بھی یہاں پر آباد تھے۔ مصری فرعونوں کی طرف سے زمانہ قدیم میں یہاں پر قبضے کر لیے گئے تھے۔ مصر اور روم کے درمیان یہاں سے تجارت ہوا کرتی تھی۔ 934 قبل مسیح میں یہاں اشوری سلطنت قائم ہوئی۔ 626 قبل مسیح میں یہاں بابلی سلطنت کا دورہ قائم ہوا۔ یہی وہ سلطنت تھی جس کا بادشاہ بخت نصر تھا، جس نے یروشلم شہر اور یہودیوں کو تباہ و برباد کر دیا تھا۔ بخت نصر کے بعد سلطان صلاح الدین ایوبی اور پھر ہٹلر نے یہودیوں کی تاریخی واٹ لگائی تھی۔ اردن پر بخت نصر یعنی بابلی سلطنت کا خاتمہ 550 قبل مسیح میں ہوا، جس کے بعد اردن اور قریبی کئی ممالک پر ایک ایرانی فارسی سلطنت، جسے تاریخ نے ہخامنشی سلطنت کا نام دیا، قائم ہوئی۔ ہخامنشی سلطنت کا خاتمہ یہاں سے سکندر اعظم کی آمد کے بعد ہوا، جس نے یہاں یونانیوں کی حکومت قائم کی۔ سکندر کی موت کے بعد جب اس کی سلطنت اس کے بیٹوں میں تقسیم ہو گئی تو کچھ عرصہ اس کے جانشینوں نے اس سلطنت کو سنبھالے رکھا۔ بعد ازاں یہاں رومی غالب آ گئے اور رومیوں نے مصر، اردن، شام وغیرہ سبھی قریبی ممالک کو سلطنت روم کا حصہ بنا دیا۔ اس خطے سے رومیوں کا خاتمہ ساسانیوں نے 224 عیسوی میں کیا۔ 395 عیسوی میں یہاں بازنطینی غالب آ چکے تھے۔ 634 عیسوی میں یہاں حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کی قیادت میں اسلامی لشکر نے شام کی عظیم الشان فتح کا جشن منایا۔ شام کی ہونے والی اس فتح میں شام، فلسطین، اردن اور لبنان کے کافی علاقے تھے۔ مسلمانوں نے شام کی فتح کے 3 سے 4 سالوں بعد اس خطے کو بلاد الشام کا نام دیا اور اسے اسلامی سلطنت کے ایک صوبے کے طور پر چلایا۔ خلافت راشدہ کے بعد اموی خلافت، پھر عباسی خلافت، پھر فاطمی دور حکومت، پھر ہمدانی حکومت، پھر منگول، پھر سلجوقی سلطنت، پھر یہاں آغاز ہوا صلیبی جنگوں کا۔ صلیبی جنگوں کے خاتمے اور سلطان صلاح الدین ایوبی کی فتح کے بعد یہاں ایوبی سلطنت کا سکہ چلنے لگا۔ ایوبی سلطنت کا خاتمہ اردن سے سلطنت مملوک کے حکمرانوں نے کیا۔ 1516 عیسوی میں اردن عثمانیوں کے قبضے میں چلا گیا اور آنے والی کئی صدیوں تک یہ عثمانی سلطنت کا حصہ بن گیا۔ عثمانیوں کے خاتمے پر یہاں برطانوی اور فرانسیسی قابض ہونے لگے۔ اپریل 1921 میں یہاں امارت شرق الاردن کے نام سے برطانوی حمایت یافتہ ایک ریاست قائم ہوئی۔ 25 مئی 1946 کو امارت ایک آزاد ریاست بن گئی تھی۔ امارت یعنی اردن کو آزادی برطانیہ اور اقوام متحدہ کی قابض افواج سے ملی تھی۔ 1951 میں امارت کو سرکاری طور پر ہاشمی مملکت اردن کا نام دیا گیا۔ 8 جنوری 1952 کو اردن کا آئین منظور کیا گیا، جس میں آئینی طور پر یہاں بادشاہت قائم کی گئی۔ ملکی عدالتوں کو آزاد اور ججوں کو صرف آئین کے مطابق فیصلہ کرنے کے لیے پابند بنایا گیا۔ ججوں کی تقرری مسلح افواج کی کمان، اعلان جنگ اور آئین میں ترامیم کی منظوری بھی بادشاہ ہی دینے لگا۔ ہاں، اگر بادشاہ کے فیصلے کو رد کرنا ہو تو قومی اسمبلی کی 2/3 اکثریت اسے رد کرنے کی بھی اہل ہوتی ہے۔ برطانیہ سے آزادی کے بعد شاہ عبداللہ اول ملک کے بادشاہ بنے۔ 1951 میں شاہ عبداللہ کے قتل کے بعد ان کے بیٹے شاہ طلال کو بادشاہ بنایا گیا۔ کہا جاتا ہے کہ شاہ طلال نے وہ فیصلے لیے تھے جن کی وجہ سے برطانیہ کو نقصان اور اردن کو فائدہ پہنچنے لگا تھا۔ شاہ طلال کو دماغی مریض ظاہر کرتے ہوئے
उन्हें अगले साल ओहदे से हटा दिया गया। शाह तलाल के बाद रियासत का ओहदा उनके बेटे शाह हुसैन को मिलना था, मगर कम उम्र की वजह से उस ओहदे को खाली रखा गया और एक कमेटी मुल्की हालात को देखती रही। 1953 में जब शाह हुसैन 18 साल के हुए तो उन्हें बादशाहत सौंप दी गई। शाह हुसैन के दौरे हुकूमत में कई मसाइल आए, मगर कोई ताकत उन्हें बादशाह से हटा ना सकी। फरवरी 1999 में शाह हुसैन के इंतकाल के बाद से उनके बेटे शाह हुसैन दोम ने बादशाहत का ताज अपने सर पहना और अब तक संभाले हुए हैं। उर्दन के बारे में मजीद जानने से पहले मेरी जानी टीवी देखने वाले सभी दोस्तों से गुजारिश है कि अगर आपने अभी तक YouTube पर मौजूद हमारे चैनल जानी टीवी को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि सैरो सियाहत की तमाम वीडियोस आप लोगों तक बिना किसी देरी के पहुंचती रहें। दोस्तों, आजादी के बाद से उर्दन की जो हदूदबंदी की गई थी, इस हिसाब से इस मुल्क का कुल रकबा 89,342 मरबा किलोमीटर बनता है, जिसकी बुनियाद पर रकबे के लिहाज से उर्दन को पूरी दुनिया के आजाद ममालिक में 110वें नंबर पर, जबकि एशियाई ममालिक में 32वें नंबर पर शुमार किया जाता है। आजादी के बाद शुरू में उर्दन और इसराइल के ताल्लुकात खराब रहे, फिर इन दोनों ममालिक के ताल्लुकात में नरमियां आईं और फिर इन दोनों ने सफारती ताल्लुकात भी कायम कर लिए। अब हालत यह है कि लाखों की तादाद में फलस्तीनी, जिन्हें फलस्तीन में जान का खतरा था, उर्दन आए हुए थे और उर्दन ने उन्हें बाकायदा कौमी शहरियत भी दे रखी थी, अब खत्म कर दी गई है। उर्दन में इसराइल के खिलाफ मुजाहरे नहीं करने दिए जाते। कौमी टीवी, अखबारात, हत्ता के ज़राए अबलाग के किसी भी हिस्से पर इसराइल के खिलाफ खबरें नशर नहीं होती। इसराइल अब करीबी ममालिक को मुकम्मल फंडिंग जारी करता है, जिनमें उर्दन का एक बड़ा नाम आता है, ताकि हमसाया ममालिक को अपना बनाया जाए। अलबत्ता आज भी उर्दन, फलस्तीन और इसराइल के दरमियान एक इलाका हाल तलब पड़ा है, जहां तीनों ममालिक मलकियत का दावा भी करते हैं। इस मुल्क की आबादी 1,02,98,300 अफराद के करीब है, जिनमें से 3 से 4 लाख उन लोगों को शामिल नहीं किया जाता जो रहते तो उर्दन में ही हैं, मगर उर्दन ने अब फलस्तीन से हिजरत करके आने के सबब उनकी शहरियत मनसूख कर रखी है। आबादी के हवाले से इस मुल्क का दुनिया भर में 87वां नंबर है। उर्दन के अगर महल वकूअ की बात की जाए तो इस मुल्क के मशरक की जानब सऊदी अरब, मगरब की जानब फलस्तीन और इसराइल, शुमाल मशरक की जानब इराक, शुमाल में सीरिया यानी शाम और जुनूब की जानब से सऊदी अरब ने इस मुल्क को अपने घेरे में ले रखा है। अमान शहर को उर्दन का दारुल हुकूमत होने और मुल्क का सबसे बड़ा शहर होने का एजाज हासिल है। 7000 कबले मसीह में इस शहर को इंसानों ने एक बस्ती की सूरत में बसाया था, जबकि आज का ये शहर 1600 मरबा किलोमीटर रकबे पर फैला हुआ है और तकरीबन 20 लाख अफराद को जगह दिए हुए है। आज से चंद साल पहले तक अमान शहर को अरब दुनिया का सबसे महंगा शहर तस्वर किया जाता था, मगर आज दुबई को अरब दुनिया का सबसे महंगा शहर तस्वर किया जाता है और आजकल अमान को अरब दुनिया का चौथा महंगा शहर माना जाता है। प्लस 962 उर्दन का कॉलिंग कोड और अंग्रेजी में मुल्क का नाम जॉर्डन होने की वजह से .jo इस मुल्क का कंट्री डोमेन नेम है। उर्दन का ज्यादातर इलाका सहराए अरब पर मुश्तमिल है, ताहम शुमाल मगरबी हिस्से पर और मगरब की जानब यानी इसराइल और फलस्तीन की सरहद के पास हलाल नुमा एक खित्ता बहुत जरखेज माना जाता है, जहां काश्तकारी भी की जाती है और मुल्क की ज्यादातर आबादी भी इसी खित्ते में रहती है। कुवैती दिनार, बहरीनी दिनार और ओमानी रियाल के बाद दुनिया की चौथी सबसे मजबूत करेंसी भी इसी मुल्क की यानी उर्दन के दिनार को माना जाता है, जो एक दिनार पाकिस्तानी 196 रुपयों जबकि 99 इंडियन रुपयों के बराबर है। भले ही ये मुल्क दुनिया की चौथी मजबूत करेंसी का हामिल मुल्क है, मगर इस मुल्क में गुर्बत की शरह 16% और बेरोजगारी की शरह लगभग 30% के करीब है। इस मुल्क की आमदनी का 4% हिस्सा ज़राअत के शोबे से आता है, 30% इंडस्ट्री जबकि 66% दूसरी सरकारी और गैर सरकारी अदारों से पूरा किया जाता है। कुदरती गैस और तेल की इस मुल्क में बहुत ज्यादा कमी है। इस कमी को पूरा करने के लिए उसे हमसाये ममालिक से तेल और गैस को इंपोर्ट करना पड़ता है। एक वक्त था जब इस मुल्क में दूसरे ममालिक से लोग सैरो सियाहत की गर्ज से लाखों की तादाद में आया करते थे। 2010 में जब अमेरिका से खुफिया मुआहदे हुए
तो अरबों की एक बहुत बड़ी तादाद इस मुल्क में आने से गुरेज करने लगी और सियाहत के शौकीन अफराद की तादाद 2010 से 2016 के अरसे तक 70% कम होकर 47,70,500 अफराद पर आ गई, जबकि 2017 में इस तादाद में एक बार फिर से इजाफा देखने को मिला और सियाहत के शोबे में की गई तब्दीलियों की वजह से अब ख्याल किया जाता है कि 2020 में एक बार फिर से सियाहत के शोबे का वही वकार वापस आने वाला है। उर्दन दुनिया के उन चंद गिने चुने ममालिक में शामिल होता है जहां पानी की इंतहाई शदीद कमी है, लकड़ी और जंगलाती पैदावार भी इंतहाई कम है। अलबत्ता कुदरती खजानों में यूरेनियम की वाफर मकदार देखने को मिलती है। नमक, पोटाशियम और दीगर कई मादनियात इस मुल्क के सीने में दफन है। अलबत्ता फास्फेट की पैदावार के हवाले से इस मुल्क का नाम पहले ममालिक में शामिल किया जाता है जो सबसे ज्यादा फास्फेट पैदा करते हैं। उर्दन में 8000 किलोमीटर तवील पुख्ता सड़कों का जाल बिछाया जा चुका है। नेशनल रेल सिस्टम भी मंजूर हो चुका है जो तमाम बड़े शहरों और कस्बों को मुसाफिर और माल बरदार ट्रेनों के जरिए मिलाएगा। अकाबा की बंदरगाह इस मुल्क की वाहिद बंदरगाह है, जबकि 3 इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स हैं जिनका ज्यादातर इस्तेमाल गैर मुल्की परवाजों के लिए किया जाता है। उर्दन पाकिस्तान से वक्त के लिहाज से 3 घंटे पीछे है, जबकि इस मुल्क की पाकिस्तान से दूरी 3170 किलोमीटर बनती है। पाकिस्तानियों को उर्दन में जाने से पहले इस्लामाबाद में मौजूद उर्दन के सफारत खाने से वीजा हासिल करना पड़ता है, जबकि भारतीयों को उर्दन ने वीजा ऑन अराइवल की सहूलत दे रखी है। इस मुल्क की 93% आबादी मुस्लिम है, जिनकी अक्सरियत सुन्नी मुसलमानों की है। शिया मज़हब के लोग इराक और सीरिया से यहाँ मुंतकिल होने वाले हैं। मुल्क की आबादी में 5% तादाद मसीही बरादरी की है जो पिछली कई सदियों से यहाँ पर मुकीम है। अलबत्ता आज़ादी के बाद से और सरकारी मजहब इस्लाम होने के बाद से मसीही आबादी की एक बड़ी तादाद अमेरिका, बरतानिया और दीगर यूरोपीय ममालिक की तरफ हिजरत कर गई है, जबकि 2% के करीब इस मुल्क में बहायत और दरोज मजहब के पैरोकार भी बसते हैं। अरबी को इस मुल्क की कौमी और सरकारी जुबान का दर्जा हासिल है। अंग्रेजी को सरकारी जुबान का दर्जा न मिलने के बावजूद भी इस जुबान का बकसरत इस्तेमाल देखने को मिलता है। कारोबारी और बैंककारी के अलावा तालीमी मैदान में भी अंग्रेजी का खासा इस्तेमाल देखा जा सकता है। दीगर ज्यादा बोली जाने वाली जुबानों में हस्पानवी, फ्रांसीसी, आर्मेनियन, चीचेन, तुर्किश, यूनानी और बोस्नाई जुबान शामिल हैं। इंतजामी लिहाज से उर्दन को 12 सूबों में तकसीम किया गया है। हर सूबे का हुक्मरान गवर्नर कहलाता है, जिसका इंतखाब सदर करता है। अमान शहर के अलावा जर्श शहर, अरबद शहर, जरका शहर, मादबा शहर, कर्क शहर और अकाबा शहर मशहूर और तारीखी शहर शुमार किए जाते हैं। फुटबॉल इस मुल्क में सबसे ज्यादा देखी, सबसे ज्यादा खेली और सबसे ज्यादा पसंद की जाने वाली खेल है, जबकि फुटबॉल को इस मुल्क की कौमी खेल का एजाज भी हासिल है। फुटबॉल के अलावा दूसरी सबसे मकबूल खेल रग्बी है, फिर साइकिलिंग, बास्केटबॉल और स्केटबोर्डिंग खेली जाती है। इंसानों की उम्र इस मुल्क में 78.8 साल है, जबकि तालीम की शरह इस मुल्क में 98.1% है। उर्दन अरब के उन 2 ममालिक में से एक है जिन्होंने बाकायदा तौर पर इसराइल के साथ सफारती ताल्लुकात भी कायम कर रखे हैं, जबकि इसराइल और फलस्तीन के दरमियान सालस का किरदार अदा करने के मौका पर भी उर्दन सबसे आगे आगे होता है। मौसम बहार के दिनों में सिर्फ वादिय रम में खिलने वाला ब्लैक आयरस इस मुल्क का कौमी और दुनिया का नायाब तरीन फूल है। चिड़ियों की एक किस्म साइनाई रोजफिंच इस मुल्क का कौमी परिंदा है। अरेबियन बारासिंगा इस मुल्क का कौमी जानवर है। उर्दन का कदीम पेट्रा सिटी, जिसका जिक्र मैं वीडियो के पहले हिस्से में भी कर चुका हूँ, आलमी इदारा यूनेस्को के मुताबिक दुनिया के 7 अजूबों में से एक है। उर्दन में आए गैर मुल्की सबसे ज्यादा इसी मुकाम पर वक्त गुजारते हैं। इस शहर को शहर गुलाब भी कहा जाता है। बुहेरा मुर्दार के साथ ये मुल्क 26 किलोमीटर तक अपनी हदूद साझी करता है। अगर ये समुंदर ना होता तो उर्दन का शुमार भी ज़मीनबाज़ मुमालिक की फहरिस्त में होता। उर्दन में हर साल 20% कत्ल गैरत के नाम पर औरतों के कर दिए जाते हैं। उर्दन के बड़े दरियाओं की तादाद 4 है, जबकि बराए नाम के कई दरिया
मजीद हैं जो बिना कोई फायदा दिए बुहराए मुर्दार में गिरते हैं। जैतून का दरख्त इस मुल्क में सबसे ज्यादा देखने को मिलता है, जबकि इस मुल्क के नेशनल ट्री का एजाज बलूत के दरख्त को हासिल है। उर्दन के माउंट नीबू को खास मुकाम हासिल है, क्योंकि यही वो मुकाम है जहां हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने वफात पाई थी। यही वो सरजमीन थी जहां हजरत अयूब अलैहिस्सलाम आजमाइश में डाले गए थे। उर्दन के लोगों को अरब की सबसे मेहमानवाज कौम माना जाता है। यही वजह है कि या अहलन व सहलन लफ्ज आपको बार बार सुनने को मिलता है, जिसका मतलब वेलकम होता है। यहाँ की लड़कियों के मलबूसात में मगरब का बहुत गहरा रंग देखने को मिलता है। कहा जाता है कि अरब की सबसे मॉडर्न लड़कियां भी इसी मुल्क में रहती हैं। दोस्तों, ये थी उर्दन के बारे में दिलचस्प मालूमात पर मबनी एक खूबसूरत सी वीडियो। अगर ये वीडियो आप लोगों की मालूमात में इजाफे का सबब बनी हो तो इस वीडियो को अपने अजीजों अहबाब के साथ व्हाट्सएप और फेसबुक वाल पर शेयर करते हुए अपनी पसंदीदगी का इजहार करें। मेरी हौसला अफजाई के लिए इस वीडियो को लाइक कर दें, जबकि आप अपनी कीमती आरा बजरिया कमेंट अरसाल कर दीजिए। आपसे मुलाकात होगी ऐसी ही किसी तफरीही वीडियो के जरिए। तब तक के लिए मुझे दीजिएगा इजाजत। अल्लाह निगहबान।